نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. آمین یا رب العالمین۔ آج ہم انشاءاللہ اللہ کے خاص فضل و کرم سے، اس کی خاص رحمت اور توفیق سے، سورۃ النساء کی آیت نمبر 88 سے انورڈ، 88 نمبر آیت سے انورڈ اپنا سبق دیکھیں گے اور کچھ آیات کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے ہم اسی کی حمد اور اسی کا شکر اور اسی کی تعریف کرتے ہیں جس نے ہمیں یہ وقت اور یہ مہلت عطا فرمائی، جس نے ہمیں یہ وسائل، یہ سہولیات، یہ ضروریات، یہ ٹیکنالوجی، یہ رزق اور بے شمار انعام و اکرام اور فضل و کرم ہمارے اوپر کیا، اور خاص کر جس نے ہمارے دلوں میں یہ ڈالا کہ ہم اس بابرکت کلام کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس کوشش میں ہمیں استقامت نصیب فرمائے، اس کی صحیح سمجھ اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرمائے، اس کے ذریعے سے اللہ ہمیں اپنی اور اپنے ساتھیوں کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دنیا کے ساتھ ساتھ اللہ ہمیں آخرت کی کامیابی اور بھلائی اور اپنا خاص فضل و کرم ہمارے شامل حال رکھے۔ آمین یا رب العالمین۔ آگے بڑھنے سے پہلے ہم اپنا کل کا سبق، اس کا ترجمہ دہراتے ہیں، جو کہ آیت نمبر 83 سے لے کر آیت نمبر 87 تک، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا جہاں انہیں، منافقوں کے بارے میں، کہ جہاں انہیں کوئی خبر امن کی یا خوف کی ملی، انہوں نے انہیں مشہور کرنا شروع کر دیا، حالانکہ اگر یہ لوگ اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان میں سے اور حالانکہ اگر یہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور اپنے میں سے ایسی باتوں کی تہ تک پہنچنے والوں کے حوالے، اول الامر افراد کے حوالے اگر کر دیتے تو اس کی حقیقت وہ لوگ معلوم کر لیتے جو نتیجہ اخذ کرتے ہیں، اور اگر اللہ تعالیٰ کا فضل اور اس کی رحمت تم پر نہ ہوتی تو معدود چند، یعنی چند دن کے علاوہ، چند لوگوں کے علاوہ، ان چند کے علاوہ تم سب شیطان کے پیروکار بن جاتے۔ تو اللہ کی راہ میں جہاد کرتا رہے، آپ اللہ کی راہ میں جہاد کرتے رہیے صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کو صرف آپ کی ذات کی نسبت حکم دیا جاتا ہے، ہاں ایمان والوں کو رغبت دلاتے رہیے۔ بہت ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ کافروں کی جنگ کو روک دے، اور اللہ تعالیٰ سخت قوت والا ہے اور سزا دینے والا بھی ہے۔ جو شخص کسی نیکی یا بھلے کام کی سفارش کرے اسے بھی اس کا کچھ حصہ ملے گا، اور جو برائی اور بدی کی سفارش کرے اس کے لیے بھی اس میں ایک حصہ ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ اور جب تمہیں سلام کیا جائے تو تم اس سے اچھا جواب دو، جب تمہیں دعا دی جائے یا جب تمہیں دی جائے، تحیت کیا جائے تو تم اس سے اچھا جواب دو، یا انہی الفاظ کے ساتھ اس کو لوٹا دو، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کا حساب لینے والا ہے۔ اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ تم سب کو یقیناً قیامت کے دن جمع کرے گا، جس کے آنے میں کوئی شک نہیں۔ اللہ تعالیٰ سے زیادہ سچی بات والا اور کون ہوگا۔ یہ ہمارا کل کا سبق، اور کل کے سبق میں بھی ہم نے دیکھا کہ ایک بڑا اہم پوائنٹ جو اضافی طور پر ہمیں منافقین کے رویے کے بارے میں ملا، کہ وہ خبروں کو، جھوٹی ہوں یا سچی ہوں، ان کو پھیلانے میں بڑے بڑے پیش ہوتے ہیں، اور یہ ان کی سینسٹیوٹی، اس کی حساسیت کا لحاظ رکھے بغیر کبھی اچھی خبر مسلمانوں کو کمزور کرنے کے لیے، اور یا بری خبر مسلمانوں میں خوف پیدا کرنے کے لیے، یا مختلف مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے، یا اپنی منافقت کی تسکین کے لیے، وہ اس طرح کی خبریں جو ہیں
وہ پھیلا کر پروپیگنڈا میں اپنا شامل ہوتے ہیں، جبکہ ان کو تو یہ چاہیے کہ وہ ان خبروں کو یا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کریں، یا پھر اولو الامر اصحاب جو تھے، جو کہ سوچ بوجھ کر کے اس کے مطابق فیصلے کرنے کے اہل ہیں، ان کے حوالے کرتے ایسی خبریں، تو یہی ان کے لیے بہتر ہوتا۔ تو یہ منافقین کا ایک اور طرز عمل جو ہے وہ ہمیں ملا کل کے سبق میں، اور اس کے علاوہ سفارش کے بارے میں کہ دنیا کے معاملات میں جس نے کسی کی مدد کی، سفارش کی، ساتھ دیا، کسی کی حمایت دی، اگر وہ کسی اچھے کام میں نیکی کے لیے حمایت کر رہا ہے، سفارش کر رہا ہے، تو یقیناً اس میں اس کا حصہ ہوگا، اچھے اس کے اجر میں بھی، اچھے اچھے اجر میں، نیکی میں۔ لیکن اگر کسی نے برائی کے کام میں کسی کی سفارش کی، کسی کا ساتھ دیا، کسی کو تقویت دی، تو اس کا یقیناً انجام برا ہوگا، کیونکہ اس میں برائی میں بھی وہ حصہ دار جو ہے وہ شامل ہوگا۔ آج کا ہمارا سبق جو ہے وہ آیت نمبر 87 سے اور 88 سے انورڈ، اور 88 سے انورڈ بھی رکوع جو ہے وہ آیات کے اعتبار سے چھوٹا سا ہے، لیکن موضوع جو ہے وہ جو پچھلا موضوع چلا آ رہا ہے منافقین کے بارے میں، کہ منافقین کے مختلف طرح کے طرز عمل یا مختلف طرح کے رویے جو ہیں، ان سے کیسے نمٹنا ہے، یا ان کو ان کے ساتھ ان کو کیسے ٹیکل کرنا ہے، ان کو کیسے ہینڈل کرنا ہے، اور اس کے علاوہ ان کی اس کے علاوہ ان کی مطلب خصلتیں یا ان کی عادتیں جو ہیں وہ کیا ہیں، ان کے بارے میں ہمیں تذکرہ ملے گا۔ تو اس آج کے سبق میں جسٹ ایک منٹ میں، جی امید ہے کہ انشاءاللہ آواز تو آ رہی ہے آپ کو، کیونکہ مجھے یہاں پر فیل ہو رہا ہے کچھ ٹیکنیکل ایشو ہے۔ جی، تو آج کے سبق میں ہم دیکھیں گے کہ منافقین کے بارے میں کچھ مزید باتیں جو ہیں وہ ہمارے سامنے کھلیں گی۔ منافقین جیسا کہ عام طور پر ہم نے ابھی تک دیکھا کہ مدینہ میں ہی عام طور پر ہمیں لگا کہ ارد گرد کے جو لوگ ہیں ان میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو دل میں نفاق رکھے ہوئے ہیں، ظاہری طور پر وہ ایمان کو شو کرتے ہیں، لیکن در حقیقت وہ اپنے اندر منافقت جو ہے وہ چھپائے ہوتے ہیں۔ تو ان منافقوں کے بارے میں مسلمانوں کی مختلف طرح کی رائے، مومنین کی رائے جو ہے وہ مختلف طرح کی ہوتی تھی۔ خاص کر احد کے موقع پر جب منافقین کا ایک گروہ جو ہے وہ راستے ہی سے ہی پلٹ گیا، 1,000 کا لشکر جو ہے وہ لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نکلے، لیکن ان میں سے 300 لوگوں کا لشکر جو ہے یا ایک گروپ جو ہے وہ راستے سے ہی واپس پلٹ آیا کہ ہماری بات جو ہے وہ تو نہیں مانی گئی، کہ مدینہ کے اندر رہ کر ہی ہم اپنی حفاظت کریں۔ تو اس بات پر ایک ایشو بنا کر انہوں نے اپنی منافقت جو ہے، در حقیقت انہوں نے اپنی منافقت ظاہر کی، اور میدان جنگ سے آگے بڑھنے کی بجائے، میدان جنگ کی طرف جانے کی بجائے وہ واپس مدینہ کی طرف لوٹ گئے۔ تو روایات سے پتہ چلتا ہے، یہ جو پہلی آیت، آیت نمبر 87 ہے، سوری آیت نمبر 88 جو ہے، اس کے بارے میں کچھ روایات سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ مسلمان جو ہے یہ اس گروہ کے بارے میں دو طرح کا خیال کرتے تھے، یا دو طرح کی رائے رکھتے تھے۔ ایک یہ کہ وہ چلے ہمارے ساتھ تو نکلے تھے، واپس اگر پلٹ گئے ہیں تو ٹھیک ہے، ان کو ہم تھوڑا سا سمجھاتے بجھاتے ہیں، وہ بھی منافقت یا وہ بھی ہمارے ساتھ ملیں گے، کچھ نہ کچھ تو ان میں تھا جو نکلے تھے، تو ان کو سمجھا بجھا کر ہی ہم مطلب ان کو اپنے ساتھ ملاتے ہیں۔ اور کچھ کا خیال یہ تھا کہ نہیں، وہ منافق ہیں، ان منافقوں کا رویہ جو ہے یا منافقت انہوں نے اپنی شو کر دی، یا ان کی منافقت جو ہے وہ بالکل ظاہر ہو گئی۔ اب منافق جو ہے وہ کافروں کے برابر ہیں، لہذا ان کے ساتھ بھی سختی سے معاملہ کرنا چاہیے، سختی کے ساتھ نمٹنا چاہیے۔ تو یہ دو طرح کی رائے جو ہے اس کا ایک تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر آیت نمبر 88 میں تذکرہ کر کے کہا کہ یہ دو طرح منافق کے بارے میں دوگنی رائے یا دو طرح کی رائے نہیں ہونی چاہیے۔ جب کسی کی منافقت کھل کر سامنے آ جائے اور وہ ظاہر ہو جائے کہ اب وہ منافق ہے، اس کے عمل سے، اس کے قول سے، اس کے فعل سے، تو پھر اس کے ساتھ سختی سے نمٹنا ہی ایک ضروری امر ہے۔ تو یہ بخاری اور مسلم کی ایک روایت جو ہے وہ اس
इस वाक़े को या इस वाक़े के मुताबिक मुसलमानों की जो दो राय थी मुनाफिकीन के बारे में उसको ज़ाहिर करती है। लेकिन आगे आने वाली जो आयत हैं उनको अगर हम देखें तो हमें मुनाफिकीन का एक वसी गिरोह जो है वो नज़र आता है। बहुत सारी मज़ीद बातें जो है हमारे सामने खुलती हैं। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत करके मदीना आए और मदीना में शुरू के दौर में ही उन्होंने कुछ सेटलमेंट्स ऐसी की, कुछ मुआहदे ऐसे किए कि वो जो एक छोटी सी रियासत जिसका अब क़याम हुआ है मदीना में, वो एक सेफ मकाम जो है या एक सेफ जगह बन चुकी है मुसलमानों के लिए, कि जहाँ पर आकर वो अपनी आज़ादी के साथ अपने ईमान को भी ज़ाहिर कर सकते हैं, अपने दीन के ऊपर अमल भी कर सकते हैं और दीन का साथ भी दे सकते हैं। तो इस पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दावत दी कि वो लोग जो ना सिर्फ मक्का बल्कि इर्द गिर्द के कबाइल में जो मुसलमान हो चुके, लेकिन उन काफिरों या अपने उन कबीलों के जो सरदार वगैरह हैं, लोग हैं, उनके ज़ेर तसल्लुत हैं या उसकी वजह से उनको कुछ तकलीफ़ें या मुसीबतें जो हैं वो झेलना पड़ रही हैं, तो वो उनके लिए दावत है कि वो मदीना में आए और मदीना में आकर सेटल कर दे। यानी ये भी हिजरत का एक अल्लाह ताला नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस वक़्त उनको ऑफर की, जिसकी तस्दीक जो है वो आगे हमें आयात में मिलेगी कि अगर वो हिजरत करें तो ठीक है, अगर वो हिजरत ना करें तो इसका मतलब है कि वो मुनाफिक हैं, फिर उनके साथ बुरी तरह से निपटा जाएगा। तो लिहाजा कुछ लोग जो हैं वो ज़ाहरी तौर पर तो ईमान लेकर आए मदीना से बाहर, मुख्तलिफ कबाइल में या मुख्तलिफ ग्रुपों में, मुख्तलिफ बस्तियों में रहने वाले लोग ज़ाहरी तौर पर वो ईमान लाए, लेकिन दर हकीकत वो मुनाफिक थे या कमज़ोर ईमान वाले थे। मुनाफिक या कमज़ोर ईमान वाले, वो हिजरत नहीं की उन्होंने, बल्कि वो वहीं पर अपनी बस्तियों में, अपने उन्हीं आबादियों में या अपने उन्हीं वो जो जो गांव वगैरह हैं वहीं पर जाकर उन्होंने अपना बसेरा जो है मुस्तकिल रखना, यही उन्होंने चूज़ किया। और उनमें से अक्सर लोग जो है वो मदीना में जब आप नबी के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आते तो वो इस्लाम का धर्म भरते, लेकिन जैसे ही वो वापस अपने अपनी बस्तियों की तरफ लौटते तो वहाँ पर जाकर इस्लाम के मुखालफत जो है वो शुरू कर देते। और अगर वहाँ से कोई तहरीक शुरू होती, वहाँ से अगर कोई इस्लाम के खिलाफ, मुसलमानों के खिलाफ कोई कोई ऐसा मिशन जो है वो शुरू होता तो उसका साथ देने लग जाते। तो ऐसे मुनाफिक जो हैं उनका उनका कला कमा कैसे करना है या उनके साथ कैसे डील करना है, वो आज के सबक में उसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन या हिदायत जो है वो मिलेंगी कि कौन से ऐसे मुनाफिक हैं जिनके साथ सख्ती से निपटा जाएगा, और जहाँ भी वो मिले कि तुम्हारे सामने खड़े हैं, उनका साथ लिहाज नहीं करना, उनको वहीं पर उनके साथ किताल करना है और उनको मतलब उनके खिलाफ जंग करनी है। अब इसकी नौबत क्यों आई नबी के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, या अल्लाह ताला ने ये जो मज़ीद हिदायत या मज़ीद वजाहत की, उसकी वजह यह है कि मुसलमान जो है, एक तो मुनाफिक जो है वो इस तरह से बात करते, मतलब मक्खन लगा लगा कर बात करते मुसलमानों से, तो मुसलमानों को लगता कि ये जो है ये बड़े एहसास करने वाले हैं मुसलमानों का, लेकिन हकीकत जो है वो इसके बरक्स थी। और दूसरे नंबर पर ये जो इससे पहले आयत में गुजरा कि खबर जो है वो उसको फैलाते हैं और फिर प्रोपागेंडा करके उसमें फिर मुसलमानों के खिलाफ और इस तरह से इकदाम करते हैं। तो प्रोपागेंडा जो है वो भी बहुत ज़्यादा होता वहाँ पर, और बहुत सारे ऐसे मुसलमान जिनके दिल पर निफाक तो ना होता या वो मुसलमानों के लिए बेज़रर होते, वो भी उन्हीं लोगों में शामिल हैं और वो भी उस प्रोपेगेंडे का शिकार हो जाते। तो लिहाजा उस प्रोपेगेंडे से बचने के लिए मुसलमानों में एक वाज़ेह खाका बनाने के लिए कि कौन वो लोग हैं जिनका रवैया अगर उन ब्रैकेट्स में आ गया जिनका हमें आंदा आने वाली आयत में मिलेगा, तो ये वो लोग हैं जिनके खिलाफ हमें सख्त इकदाम करने हैं और जिनको हमें सख्ती के साथ निपटना है। और फिर अगर ऐसे लोग हमारे सामने आए तो इनके लिए कोई माफ़ी नहीं है। अलबत्ता कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बेज़रर हैं, जो कि इस काबिल नहीं कि वो मुसलमानों के साथ मिलकर जंग करे और ना ही मुसलमानों के खिलाफ किसी जंग में हिस्सा ले सकते हैं। तो ऐसे लोगों के साथ फिर नरमी बरतने या ऐसे लोगों से एराज़ करने का भी अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि ये लोग बेज़रर जो हैं, जो किसी तरफ भी मुखालफत नहीं करते, उनके साथ तुम इस तरह से मामलात जो है वो नहीं, उनको इस्तिस्ना हासिल है। उसके अलावा बाकी जो मुनाफिकीन हैं
जैसे ही उनकी मुनाफिकत सामने आई और वो मुसलमानों के मद्दे मुकाबला आए, तो जहाँ पर भी वो मिले वहीं पर उनके साथ सख्ती से निपटते हुए उनको कत्ल कर देना या उनको रास्ते से हटा देना या उनका रास्ता बंद कर देना जो है, ये मुसलमानों की इसकी हिदायत और रहनुमाई जो है वो आगे की आयत में मिली। ये हमने मुख्तसर तमहीद इसलिए बांधी कि आयत जो है वो अपनी तवालत के अतबार से थोड़ी सी तवील है, लेकिन उनका मफहूम जो है वो तकरीबन इसी तरह से बनता है जो अभी हमने अ, जिक्र किया। तो इसके मुताबिक हम आगे बढ़ते हैं और इन आयात को समझने की कोशिश करते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। फमा लकुम फिल मुनाफिकीना फिअतैनि, तो क्या हो गया है तुम्हें कि मुनाफिकों के बारे में दो ग्रोह बन गए हो। ऐ मुसलमानों, तुम मुनाफिकों के बारे में दो राय, या मुनाफिकों के बारे में दो तरह की राय तुम्हारे दरमियान पैदा हो गई हैं। ये तुम्हें क्या हो गया है? वल्लाहु अरकसहम बिमा कसबू, हालांकि अल्लाह ने औंधा कर दिया है उन्हें उस वजह से जो उन्होंने कमाया। जो उनके करतूत थे उन मुनाफिकों के, उनकी मुनाफिकत की वजह से अल्लाह ताला ने उन्हें औंधा कर दिया, यानी उनकी एक तो हकीकत तुम्हारे सामने खोल कर वादे कर दी और फिर दोबारा उनको वो अपने कुफर में उसी तरह से मतलब लोटे हुए हैं जिस तरह से वो पहले थे। ज़ाहरी तौर पर वो कुछ और हैं, लेकिन दर हकीकत वो अपने कुफर में औंधे पड़े हुए हैं। और अल्लाह ताला ने भी उनकी मुनाफिकत को वादे कर दिया। तो अब जब उनकी मुनाफिकत खुलकर सामने आ गई, तो उनके बारे में मुसलमानों के लिए दो राय रखना जो है वो मुनासिब नहीं। एक राय ये कि उनके साथ अच्छा सलूक किया जाए, समझाया बुझाया, शायद कि वो रास्ते पर आ जाएं, और दूसरा वो कि दूसरी राय के नहीं, उनके साथ सख्ती से निपटना चाहिए। तो ये आयत का ये हिस्सा जो है ये गज़वा उहद के दरमियान जो वाक़या हुआ, जिसका हमें अभी तज़किरा किया, मुस्लिम और बुखारी की रिवायत जो कि हज़रत ज़ैद बिन साबित है, तो उसके बारे में भी हो सकता है। और दीगर मुनाफिकीन जो हैं उनके बारे में भी। अतुरीदून अन तहतू, क्या तुम चाहते हो कि तुम हिदायत पर ले आओ? मन अल्लाह, जिसे गुमराह कर दिया है अल्लाह ने, जिसने अल्लाह की रस्सियों को छुड़ा कर, अल्लाह की हिदायत को ठुकरा कर अपने लिए गुमराही का रास्ता चुन लिया। तुम अब अल्लाह ने उनकी रस्सी को दराज कर दिया कि ठीक है, अब गुमराही में चलते रहो जहां तक तुम चल सकते हो। तो तुम्हारा क्या ख्याल है कि तुम ऐसे गुमराह लोगों को हिदायत पर ले ले आओगे? ऐसे गुमराह लोग जो हैं वो अल्लाह की मशीयत, या जब तक वो अल्लाह की तरफ ना लौटें और अल्लाह की तौफीक ना हो, तो वो गुमराही से वापस नहीं पलटते। तुम्हारी कोशिश जो है वो इसमें बेकार होगी इन मुनाफिकों को जो अपनी हदों से करास कर चुके। वमन युज़लिल्लाह वमन युज़लिल्लाह, और जिसे गुमराह कर दे अल्लाह, फलन तजिद लहू सबीला, तो हरगिज़ नहीं आप पाएंगे उसके लिए कोई रास्ता। जिसे अल्लाह गुमराह कर दे या जिसकी रस्सी गुमराही में अल्लाह दराज कर दे, तो उसके लिए हिदायत जो है वो इंसान के बस के बात नहीं है। वो तो अल्लाह ही उनको तौफीक दे और वो कुछ समझ बूझ लें, वगरना वो अब एक्सट्रीम लिमिट को पहुंच चुके। लिहाजा वो तुम्हारी बातों सुनकर तुम्हारे मामलात के में या वापस अपने मामलात की तरफ नहीं लौटने वाले। वद्दू लाव तकफुरूना, वो चाहते हैं कि काश तुम कुफर करने लगो। ये मुनाफिक तो ये चाहते हैं कि काश कि तुम कुफर में वापस आ जाओ। कमा कफरू, जिस तरह से उन सब ने कुफर किया। फतकूनूना फतकूनून सवाअन, फिर तुम सब बराबर हो जाओ। वो तो चाहते हैं कि जैसे उन्होंने कुफर किया, इसी तरह से तुम भी अपना दीन छोड़कर वापस कुफर में चले जाओ और उनके बराबर हो जाओ। जिस तरह से वो कर रहे हैं उसी तरह से तुम भी करने लगो। फला तत्तखिजू मिनहुम अवलिया, लिहाजा तुम्हें नसीहत की जाती है कि ऐसे लोगों को तुम अपना वली मत बनाना, उन ऐसे लोगों को अपना दोस्त मत बनाना। औलिया वली, वली का मतलब आमतौर पर दोस्त किया जाता है, लेकिन दोस्त जो है वो बड़ा ही नैरो एक मीनिंग है इसका। वली जो है एक बहुत ही वसी डेफिनेशन है, इससे पहले तज़करा हो चुका कि विलायत जो है दर हकीकत वो साथी या वो दोस्त होता है जिसके साथ गम और गमी और खुशी के रिश्ते होते हैं। वो हर राजदान होता है, हर तरह की मोहब्बत और हर तरह की चाहत जो है वो उसके साथ होती है। गमी और खुशी का साथ देने वाले जो लोग हैं, ऐसे लोगों में या इस तरह के जज्बात के उनके साथ मत तुम डेवलप कर लेना। हत्ता युहाजिरू फी सबीलिल्लाह, यहाँ तक कि वो हिजरत कर जाएं अल्लाह के रास्ते में। अगर तुम्हें उनकी मुनाफिकत की
का इम्तहान लेना है, अगर तुम्हें उनके ईमान का इम्तहान लेना है और उसकी मुनाफिकत को परखना है कि क्या वो वाकई मुनाफिक है तो नहीं, तो ऐसी सूरत में एक लिटमस टेस्ट तुम्हारे पास है कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया उनको कि हिजरत करके तुम मदीना में आ जाओ और मदीना में रहते हुए मुसलमानों को मजबूत करो, तो इनसे कहो ज़रा कि ये हिजरत करके मदीना में आ जाएं। अगर तो ये हिजरत कर जाएं तो इसका मतलब है कि उसमें उनमें मुनाफिकत नहीं है, फिर वो काबिल भरोसा है। लेकिन अगर वो हिजरत करके अल्लाह की राह में वापस ना आए तो इसका मतलब है कि वो मुनाफिक है, और ऐसे मुनाफिक जो हैं उनके साथ सख्ती से निपटना है। अब यहाँ पर मुनाफिक जो है, सॉरी हिजरत जो है, उसका एक जो बड़ा आम मानी हमें मिलता है वो तो यही है कि अल्लाह के रास्ते में अपने घर बार को छोड़कर हिजरत करना। एक मिनट। अल्लाह के रास्ते में अपने घर बार को छोड़कर मतलब दूसरी जगहों पर हिजरत करना, आम तौर पर यही हिजरत जो है वो हमें मफहूम जो है उसको समझ लगता है। लेकिन हिजरत की और डेफिनेशन भी हमें मिलती हैं। जैसा कि एक रिवायत मैंने रात को देखी थी, एक मिनट। माजरत में ये एक रिवायत अपने सामने खोल लूँ। जी, ये दूसरी रिवायत है, ये बुखारी में है। वल हुमा वल वल मुहाजिरु मन हजरा मा नहयल्लाहु अन्हु, कि मुहाजिर वो है जो अल्लाह की मना करदा चीज़ों को छोड़ दे। तो हिजरत करने वाला दर हकीकत वो है जो अल्लाह की मना करदा चीज़ें जो हैं उनको छोड़ दें। जो मुहाजिर का एक मफहूम जो है वो ये भी हमें रिवायात में मिलता है, सही बुखारी और सही मुस्लिम की ये रिवायत है। तो इससे हमें अंदाज़ा होता है कि ना सिर्फ अपने घरों बारों को छोड़ देना, बल्कि प्रैक्टिकली अपने माइंड को, अपने अकीदों को, अपने जो नफ्सियात है या अपने जो नज़रियात हैं, अफकार हैं, उनकी भी हिजरत करनी है। उसके साथ उन अपने ज़ाहरी असबाब के अलावा अपने जो रूहानी जो मामलात हैं उनमें भी तुम्हें हिजरत करनी है अल्लाह की तरफ। और अल्लाह ने जो जिन चीज़ों से मना किया है उनसे तुम हट जाओगे तो तुम मुहाजिरों में शामिल हो जाओगे। तो इस डेफिनेशन के मुताबिक मुनाफिकीन की ये भी एक फिट होती है कि अगर मुनाफिक जो है वो सही मायनों में तुम्हारा साथ देंगे तो फिर समझो कि वो बच जाएंगे। लेकिन ये मानी वहाँ पर ज़्यादा फिट नहीं बैठता, क्योंकि दिलों के अंदर नफाक जो है, जब तक कोई ऐसी हरकत या कौल व फेल सामने ना आए तो मुनाफिकत जो है वो ज़ाहिर नहीं होती। तो लिहाजा ये ज़ाहरी तौर पर उनका हिजरत करना जो है वो ज़्यादा करीब है मानी के एतबार से, कि उनसे उनको याद कराओ कि तुम्हें तो हिजरत करने का हुक्म दिया गया था। अगर तो वो हिजरत कर आए तो फिर तुम उनको अपना दोस्त कंसीडर कर सकते हो, फिर तुम उनके साथ जज्बात और एहसासात जो है वो कायम कर सकते हो वलियों की तरह से। वगरना अगर वो ऐसा ना करें तो इसका मतलब है कि उन्होंने साबित कर दिया कि वो मुनाफिक है। तो ऐसे मुनाफिकों के साथ कैसे निपटता है, कैसे निपटना है? फाइन तवल्लो, फिर अगर वो रूगर्दानी करें यानी हिजरत करने से परहेज करें या बाज रहें या हिजरत करने से इनकार कर दें, फखुजूहुम, तो तुम उन्हें पकड़ो यानी उनको कैद करो। जहां पर भी आप इसका मतलब कि जब भी तुम्हारे सामने आए, जब भी वो तुम्हें रिजिस्ट करते नजर आए, जब भी तुम्हें मुखालफत करते नजर आए, तो उनको उसी वक्त पकड़ लो, उनको मोहलत मत दो, उनको कैद करो। वक्तलूहुम, और उनके साथ किताल करो, उनके साथ जंग करो, उनको कत्ल करो। हैसु वजदतुमूहुम, जहाँ कहीं भी तुम उनको पाओ, जहां भी तुम्हें मौका मिले, हालत जंग में या मुनाफिकत करते हुए, मुसलमानों के खिलाफ इकदामात करते हुए, तो तुम्हें उनके साथ सख्ती से निपटो और उसके मुताबिक मतलब उनके उनके साथ किताल करो। वला तत्ताखिजू मिनहुम, और मत पकड़ो और मत तुम पकड़ो उनमें से वलीयन, किसी को दोस्त, वला नसीरा, और ना ही मददगार। और तुम्हें दोबारा नसीहत की जाती है कि ऐसे दोस्तों के साथ ना तो तुम अपने वलायत का रिश्ता या वलायत के जज्बात उनके साथ डेवलप करो, और ना ही तुम उन्हें ये समझो कि ये तुम्हारी कभी मदद करेंगे। ये मुनाफिकत है, उनकी मुनाफिकत साबित हो चुकी, ये कभी भी तुम्हारा साथ नहीं देंगे। लिहाजा तुम्हें चाहिए कि तुम इनके साथ सख्ती से निपटो और सख्ती से उनके साथ पेश आओ। अब यहाँ पर एक जिहाद के जंग के बारे में कल जो हमने तज़करा किया था हल्का सा, कि जंग का मतलब
एक तो ये है कि लड़ाई, लेकिन जंग की, एक मुजाहिद या जिहाद करने वाला या अल्लाह के रास्ते में या किसी भी जंग में शामिल होने वाला, चाहे वो मुसलमान है या नॉन मुस्लिम है, काफिर है, ईसाई है, किसी जंग को वो जब पार्टिसिपेट करता है तो उसके बहुत सारे तरीके हैं जिसमें वो जंग में पार्टिसिपेट करता है। आगे आने आने वाली आयत जो है वो खास तौर पर इसमें हमारे हमें मदद करेंगी उसको, उसको समझने के लिए, नौयत को समझने के लिए, कि एक तो वो लोग हैं जो ज़ाहरी तौर पर अपने आप को, जिन्होंने उस जंग के लिए पेश कर दिया, जो कि लश्कर का हिस्सा बने, जंगजू बनकर या फाइटर बनकर। कुछ लोग वो हैं जिन्होंने अपना माल खर्च किया, ज़ाहरी अंदाज में उन्होंने बढ़ चढ़ कर अपने वसाइल जो हैं वो जंग के लिए पेश किए। और उसके अलावा बहुत सारी और सिचुएशंस हो सकती हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास माल भी नहीं है, वो वैसे कुछ थोड़ा बहुत उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, तैयारी वगैरह करने के सिलसिले में, मशवरे देने के सिलसिले में कि इस तरह से करना चाहिए, इस तरह से नहीं करना चाहिए, मैनेजमेंट का हिस्सा बन जाते हैं, कुछ एडमिनिस्ट्रेशन का हिस्सा बन जाते हैं, कुछ मशवरे देते हैं, कुछ रास्ते तलाश करते हैं, कुछ जो है वो प्रोपेगेंडा करते हैं। प्रोपेगेंडा मतलब कि एक एक जहन साजी करते हैं या रास्ता हमवार करते हैं, दूसरे लोगों को बुलाते हैं कि तुम भी इसमें पार्टिसिपेट करो, तरगीब देते हैं, तालीम देते हैं। बहुत सारे अंदाज हैं जिसमें वो मदद करते हैं। तो मुजाहिद जो है वो ना सिर्फ अल्लाह के रास्ते में जो मतलब तलवार लेकर निकला है वही नहीं, बल्कि इस कैटेगरी में कुछ और लोग भी शामिल आते हैं जो ज़ाहरी तौर पर तो हमें उनका देखना जो है वो तलवार के बगैर हैं, निहत्ते हैं, मासूम नजर आते हैं, लेकिन हो सकता है कि उनका रवैया, उनका तर्ज अमल, उनका तरीका जो वारदात है वो मुख्तलिफ हो। वो प्रोपेगंडे के जरिए से अपनी फौज जो है उसको मजबूत कर रहे हैं। वो लोगों को तरगीब देकर उसमें अपने लोगों को में अपनी जो फौज है उसकी मजबूती का बायस बन रहे हैं, मशवरे दे रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेशन कर रहे हैं, मैनेजमेंट कर रहे हैं। तो ये सारी कैटेगरी के लोग जो हैं वो भी, हमें उनके ऊपर भी नजर रखना है, उनके उनको भी हमें आइडेंटिफाई करना है। क्योंकि अगली आयत में अब हमें क्या मिलता है, ये तो आयत नंबर 89 में है कि ऐसे मुनाफिक जो हैं, जब वो मुनाफिकत उनकी जाहिर हो जाए तो उनके साथ फिर कोई लिहाज नहीं, कोई उनके लिए फिर दूसरा रास्ता नहीं बदमाश हुआ इसके कि उनके साथ किताल किया जाए, सरेआम उनको किसी तरह की कोई छूट नहीं होनी चाहिए। हाँ, कुछ इस्तिस्ना है, इल्लल्लाज़ीना यसीलूना, मगर वो लोग जो सब जा मिले हों इला इला कौम बैनकुम व बैनहुम मीसाकुन, ऐसी कौम के दर से जिनके तुम्हारे और उनके दरमियान कोई मुआहदा तय हो चुका हो। हाँ, ऐसे लोग, ऐसे मुनाफिक या ऐसे लोग जो अगर तुम्हारे किसी ऐसे ग्रोह के साथ जा मिले हों जिनके साथ तुम्हारा कोई एमओयू साइन किया हुआ है, कोई मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग है, कोई एग्रीमेंट है, कोई कंट्रैक्ट है, कोई सुलह का मुआहदा है, कि अगर उनके पास वो उनके ऊपर हमला होगा तो हम भी साथ देंगे, और अगर हमारे ऊपर हमला होगा तो वो साथ होंगे। यानी जो ऐसे लोगों में अगर जा मिले वो जिनके साथ तुम्हारा कोई म्यूचुअल एग्रीमेंट चल रहा है, तो ऐसी सूरत में उन लोगों के पर फिर हमला नहीं करना तुमने, क्योंकि ऐसी सूरत में तो फिर वो कंट्रैक्ट या एग्रीमेंट की टर्म्स एंड कंडीशन जो है वो फिर वाइड होती हैं, और कंट्रैक्ट अगर वाइड हो जाए तो फिर खतरा जो है वो जंग का और ज़्यादा बढ़ सकता है। हमारे अपने अपने इत्तेहादी जो है वो हमारे खिलाफ हो जाएंगे। लिहाजा अगर वो हमारे इत्तेहादियों के पास चले जाएं, तुम्हारे इत्तेहादियों के पास चला जाए, तो उस वक़्त उनके साथ ऐसा मामला जो है वो नहीं करना, थोड़ी देर रुकना है, जहाँ तक कि दोबारा तुम्हें मौका मिल जाए। और जाऊकुम हसरत सुदूरहुम, या आए वो तुम्हारे पास हिचकिचाते हुए, सुदूरहुम उनके दिल, अन युकातिलुकुम कि वो जब जंग करे तुमसे, या वो तुम्हारे पास ऐसी हालत में आए कि वो कमज़ोर है, नातवान लगते हैं, और उनके दिल जो है वो बड़े ही मतलब मासूम लगते हैं कि वो जंग नहीं कर सकते तुम्हारे साथ। आओ युकातिलु कौमहम, ना ही वो इस काबिल हैं कि वो अपनी कौम के साथ जंग करें। यानी दोनों सूरतें हैं, ना तो तुम्हारे साथ मिलकर अपनी कौम के साथ के खिलाफ जंग लड़ सकते हैं, ना ही अपनी कौम के साथ मिलकर तुम्हारे खिलाफ कोई जंग कर सकते हैं। तो ऐसे लोग जो हैं उनको इस्तिस्ना हासिल है। अब ऐसे लोगों की कैटेगरी में भी जैसा कि तज़किरा हुआ, ये बहुत सारी जो मतलब जो मौज़ूआत हैं उनको सामने रखता है कि ज़ाहरी तौर पर हो सकता है कि बड़े मासूम बने हो ये लोग, लेकिन प्रैक्टिकली कुछ ऐसा काम तो नहीं कर रहे अंदर खाते कि वो मतलब अपने अपने लोगों को ताकत बख्श रहे हैं, जो कुफार को वो ताकत बख्श रहे हैं। तो ये सारे
मामलात को जब देख लो और समझ लो, और तुम्हें जब तसल्ली हो जाए कि ये लोग तो मासूम हैं, यानी बेज़रर हैं, क्योंकि कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकते, ना तुम्हारे साथ नहीं मिलते अपने अपने काफिरों के खिलाफ, अपने लोगों के खिलाफ, और ना ही उनमें ये इतनी हिम्मत है कि अपने अपने लोगों या अपने काफिर जो कौम है उसके साथ मिलकर तुम्हारे साथ खिलाफ जिहाद करें या तुम्हारे खिलाफ कोई इकदाम करें, तो ऐसे लोग भी इस्तिस्ना है उस सख्त रवैये का जिसका हमें पिछली आयत में तज़किरा मिला कि जहां कहीं तुम मिले, इनको तुम कैदी बनाओ और उनको तुम कत्ल कर डालो, किताल करो उनके साथ। वलाउ शाह अल्लाहु लसल्लतहुम अलैकुम फलकातिलु कातलुकुम, अगर चाहता अल्लाह तो ज़रूर मुसल्लत कर देता उन्हें तुम पर, तो ज़रूर कि वो तुम सब लड़ते। अगर ये तो अल्लाह की तरफ से ऐसे कमज़ोर और बेदरर बन गए हैं, अगर अल्लाह चाहता तो वो भी तुम्हारे खिलाफ मजबूत होकर मतलब कोई इकदामात ऐसे कर सकते थे। तो लिहाजा अगर फ़ाइन फ़ाइन इतज़लुकुम, अगर वो किनारा कश रहें तुमसे, यानी अगर वो अलग रहें तुमसे, फलम युकातिलुकुम, फिर ना वो जंग करे तुमसे, व अलकाउ इलैकुम, और ना ही वो इस कादर हूँ कि वो पेश करें तुम्हारी तरफ सलाम, सुलह व सलामती, ना ही वो जंग करने के काबिल हों, और वो सुलह सलामती जो है वो पेश करें, जंग करने के काबिल नहीं, तुम्हारे साथ वो मतलब सुलह के साथ रहना चाहते हैं। फमा जअल अल्लाहु लकुम अलैहिम सबीला, तो ऐसे लोगों के खिलाफ लड़ने की कोई सबील अल्लाह ने नहीं बनाई, यानी ऐसे लोगों के खिलाफ तुम्हें लड़ने का कोई इस्तेहकाक नहीं, ऐसे लोगों को अल्लाह ताला ने मुस्तस्ना करार दे दिया उस हुक्म से जिसके बारे में मुनाफिकों का ऊपर आयत में तज़किरा हुआ। सताजिदूना, अनकरीब, हाँ अलबत्ता अनकरीब तुम ऐसे लोग भी पाओगे, आखिरीना, कुछ दूसरे, युरीदूना अन यअमनुकुम, कि वो चाहते हैं कि वो अमन के में रहें तुम्हारे साथ। ये मुनाफिकों की एक तीसरी किस्म, पहली किस्म तो ये है कि वो खुलकर मुनाफिकत करते हैं और उनको जब जिहाद हिजरत के लिए कहा जाए तो वो उसका इनकार करते हैं या उसकी नहीं आते, तो ऐसे लोगों के साथ सख्ती से निपटा जाए। दूसरी तरह के मुनाफिक जो हैं वो हैं कमज़ोर ईमान वाले भी कह सकते हैं उनको, कि जो कि इस काबिल नहीं, बेज़रर हैं, ना ही वो तुम्हारे साथ मिलकर अपने कौम के खिलाफ लड़ सकते हैं, ना ही अपनी कौम के साथ मिलकर तुम्हारे खिलाफ लड़ सकते हैं। तो दूसरी कैटेगरी के लोग जो हैं उनके साथ थोड़ा सा क्या कहते हैं हाथ हल्का रखना है। और तीसरी कैटेगरी के लोग जो हैं ये तो इंतहाई बदतरीन दर्जे के मुनाफिक हैं। ये कौन से मुनाफिक हैं? सताजिदून आखरीना युरीदून अन यअमनुकुम, कि अनकरीब तुम पाओगे कुछ ऐसे लोग भी जो चाहते हैं कि वो अमन में रहें तुम्हारे साथ, वया अमनु कौमहुम, और वो सब अमन में रहें अपनी कौम के साथ। कुछ ऐसे मुनाफिक भी तुम्हें मिलेंगे जो तुम्हारे साथ और अपनी कौम के साथ अमन जो है वो रखना चाहते हैं, यानी तुम्हारे और अपने जो मुनाफिक लोग जो हैं या अपनी काफिर कौम जो है उसके दरमियान सुलह सफाई रखना चाहते हैं, यानी ज़ाहरी तौर पर बड़ी चापलूसियाँ करती हैं, ज़ाहरी तौर पर बड़े सुलह पसंद नजर आते हैं, कि दोनों तरफ वो जाकर बात करते हैं कि यार ये जंग में हिस्सा नहीं, या जंग बुरी चीज़ है, इसमें खाम का नुकसान होता है, लिहाजा तुम इससे बचो, यही बेहतर है, रास्ता है। ज़ाहरी तौर पर तो वो बड़े अमन पसंद लगते हैं और तुम्हारा साथ देते हुए फील होते हैं, लेकिन कुल्लमा रुद्दू, जब कभी लौटाए जाते हैं या बुलाए जाते हैं इलल फितनती, फितना की तरफ, उर उर की सूफीहा, तो वो सब औंधे मुंह डाल दिए जाते हैं उसमें। लेकिन जब कोई जंग की या चिंगारी इस तरह से भड़क उठती है मुसलमानों के खिलाफ, तो फौरन उसमें कूदते हैं और मुसलमानों के खिलाफ बजोर बाजू पूरी ताकत के साथ मुसलमानों के खिलाफ खड़े हो जाते हैं। तो ये मुनाफिक कैसे हैं? तो ज़ाहरी तौर पर तो सुलह पसंद लगते हैं, लेकिन जैसे ही कोई आग, कोई कोई इस तरह की चिंगारी भड़कती है कोई जंग की मुसलमानों के खिलाफ, तो वो फौरन से कूद पड़ते हैं और मुसलमानों के खिलाफ खड़े हो जाते हैं। तो ऐसे मुनाफिकीन के बारे में फ़इन लम यअतज़िलूकुम, बस अगर ऐसे लोग तुमसे किनारा कश ना रहें, व युल्कू इलैकुम सलामा, और ना वो पेश करें तुम्हारी तरफ सुलह व सलामती, ऐसी हालत में, यानी ऐसी जो जब जंग की आग भड़क उठी, और वो ऐसी हालत में अगर वो लोग जो हैं वो सुलह पसंद, जैसे कि पहले सुलह पसंद थे, ऐसी हालत में भी अगर वो तुमसे किनारा कश न रहें, यानी कि सुलह सफाई की तरफ कोशिश ना करें, और ना ही वो तुमसे अलग रहें या तुम्हारे साथ भी रहें या तुम्हारे खिलाफ इकदाम करें, व यकुफ़ु ऐदियहुम, और ना ही वो रोकें अपने हाथों को। और यहाँ पर मफहूम जो है पिछली आयत से तसलसल में यही है कि ना ही वो अपने हाथों को तुम्हारे खिलाफ उठने से रोकें,
یعنی تمہارے خلاف اقدامات کرنے میں بھی وہ پیش پیش ہوں، تو پھر ایسے منافقوں کے ساتھ، یہ بدترین منافقوں کے ساتھ فخذوہم، تو ان کو پکڑو، وقتلوہم، اور ان کو قتل کرو، ایسے منافقوں کو تو تم ضرور قید کرو اور ان کے ساتھ قتال کرو، حیث ثقفتموہم، جہاں کہیں تم ان کو پاؤ، جہاں کہیں تمہارا ان کے ساتھ سامنا ہو، جہاں کہیں تم ان کو پاؤ، تو تم ان کے ساتھ کوئی بے دریغ ان کے ساتھ اس طرح سے معاملہ کرو، ان کے ساتھ کوئی رعایت برتنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وَأُولَٰئِكَ جَعَلْنَا لَكُمْ، اور یہی وہ لوگ ہیں کہ ہم نے بنائی ہے تمہارے لیے، علیہم، ان پر، سلطان مبینہ، واضح دلیل، یہی ایسے بدترین منافق ہے جن کے بارے میں سخت رویہ، یہی ان کو قید کرنے کا اور ان کے خلاف قتال کرنے کا حکم جو اللہ تعالیٰ کا ہے، یہی وہ لوگ ہیں جن کے خلاف یہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں کھلی اجازت دی ہے کہ تم ایسے لوگ جب ثابت ہو جائے کہ وہ منافق ہیں، اور منافق ہو کر وہ تمہارے خلاف ہیں اور تمہارے خلاف اقدامات کرنے میں پیش پیش ہیں، ان کی مخاطبت کھل کر سامنے بھی آ چکی اور ان کی اسلام کے ساتھ دشمنی بھی کھل کر سامنے آ چکی، تو ایسے لوگوں کو تم رعایت مت بخشو، اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس کی کھلی چھوٹ دی ہے یا کھلی اجازت دی ہے، تو لہذا ایسے لوگوں کے ساتھ تمہیں سختی سے نبٹنا ہے جیسے اللہ تعالیٰ نے تمہیں حکم دیا ہے۔ تو یہ آج کی آیات تھیں، تین چار، میرا تین چار آیات تھیں، لیکن اپنے معنی اور مفہوم کے اعتبار سے اس وقت کا جو حالات اور سنیریو ہیں، اس سنیریو کے مطابق اگر ہم دیکھیں تو یہ بہت اہم آیات نظر آتی ہیں۔ آج کے ماحول پر بھی اگر ہم تھوڑا سا نظر ثانی کریں تو آج بھی ہمیں بہت ساری ایسے معاملات نظر آتے ہیں کہ کس طرح سے پروپیگنڈا ہو رہا ہے، کس طرح سے مسلمانوں کے خلاف اقدامات ہو رہے ہیں ایک انٹرنیشنل لیول پر بھی، اور مسلمان جو ہے وہ خود اس میں مطلب استعمال ہوتے ہیں، یہ یوز ہوتے ہیں، اور حکومتیں جو ہیں ان کا تو کیا ہی کہنا، عام لوگ جو ہیں وہ بھی پوری طرح سے اس طرح وہ نہیں سمجھ پا رہے ان چیزوں کو، بہت گڈ مڈ ہو چکا ہے۔ تو آج کے دور میں بھی منافقت کو ظاہر، بہت ساری منافقت جو ہے وہ آج ظاہر بھی ہوتی ہے۔ بہرحال جہاد کی بہت ساری لیمیٹیشن ہے آج کے، آج تو در حقیقت اس طرح کے لیڈر بھی میسر نہیں جس طرح کے پہلے لیڈر تھے کہ جو در حقیقت اسلام کے جھنڈے کی سربلندی کے لیے قائم ہونے والے تھے۔ آج کل جتنی بھی یہ پیش رفت ہو رہی ہے وہ سب کے سب اپنے ملک اور اپنا جو نظام یا اپنی حکومت جو ہے اس کو بچانے کے چکر میں ہے۔ اللہ کا نظام یا اللہ کا جو پیغام ہے اس کی تو کسی کو کوئی فکر نہیں، چاہے بڑے سے بڑا حکمران ہے، بڑا سے بڑا ملک ہے۔ کچھ لوگ جو کوشش کرتے بھی ہیں، تو ہمیں ان کو ساتھ ضرور کوشش کرنی چاہیے جہاں تک بھی ہمارے لیے ممکن ہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم جہاد میں اپنے وسائل جس طرح سے بھی ہمارے لیے ممکن ہے، جو بھی اللہ تعالیٰ نے استطاعت دی ہے اس کے مطابق ہم اپنے معاملات کو، اپنے وسائل کو اللہ کے راستے میں، اس کے دین کے کلمے کے لیے بلند کریں، مطلب پیش کریں۔ آمین یا رب العالمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔ تو پھر اجازت چاہتے ہیں، اس کے ساتھ ہی سب کو دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ سب کا حامی و ناصر ہو، ہمارے معاملات میں اللہ تعالیٰ اپنی خاص مدد اور خاص رہنمائی فرمائے۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ آمین یا رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔